Hello students, myself Anup Bhavalkar and we are studying chapter 3 pair of linear equations in two variables. In today's session we are trying to solve exercise 3.2. In exercise 3.2 our first question is form the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. हमें equations given है उनको हमको graphically solve करनी है. Our first question is 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. कोई क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. वो क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं. Then find a number of boys and girls who took part in the quiz. Then we have to find the number of boys and girls who took part in the quiz. So let the number of girls be x and the number of boys be y. हमने number of girls को क्या suppose किया है? x. और number of boys को हमने क्या suppose किया है? y. According to question, the algebraic representation is first equation will be x plus y is equal to 10 because 10 students took part in mathematics quiz. So number of girls plus number of boys is equal to 10. Now the number of girls is 4 more than the number of boys. अगर मैं माइनस वाई को तो ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का. तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हो जाएंगी. मतलब प्लस का वाई को मैं इधर लाऊंगा, इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. योर फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ग्राफिकली. फॉर दैट वी विल फाइंड पॉइंट्स. फर्स्ट our equation is x plus y is equal to 10. So प्लस का y जब इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का. then x is equal to 10 minus y. Now we will put the values of y in equation, then we will get the values of y. First we are putting y is equal to 5 in this equation, then x is equal to 10 minus 5 and 10 minus 5 is 5, so x become 5. Then we will put y is equal to 6 in this equation. तो y is equal to 6 जब पुट करेंगे तो 10 minus 6, 10 minus 6 is 4. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. अब मैं x y की प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूँ? 4. देन 10 minus 4 is 6. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6. हियर पॉइंट्स आर 5 5 4, 6 and 6, 4. Now our second equation is x minus y is equal to 4. Then minus का y जब उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का. Then x is equal to 4 plus y. Now again we are putting the values of y. First we are putting y is equal to 1. Then 4 plus 1 is 5. Then x value becomes 5. We are putting y is equal to 0. Then 4 plus 0. 4 plus 0 is 4. The x की वैल्यू हो गई 4. Now we are putting y is equal to minus 1. So plus minus minus, then 4 minus 1 is 3. Then x become 3. Now points are 5 comma 1, 4 comma 0 and 3 comma minus 1. In this graph we are putting the points. First in first equation we are putting 4. x की वैल्यू 4 ली तो हमें y का वैल्यू कितना मिला था? 6. जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू 5 ली तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली थी? हमें 5. और जब x की वैल्यू 7 ली तो y की वैल्यू कितनी मिली? 3. और इन तीनों को जब हमने ड्रॉ किया एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई. अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया 3 पे मुझे क्या मिला? -1. देन 4 पे मुझे क्या मिला? 0. और 5 पे मुझे क्या मिला है? 1. और हम इसको भी ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों लाइन की एक पर्टिकुलर पॉइंट 7 पे इंटरसेक्ट कर रही है. एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7. और वाई की वैल्यू कितनी है? 3. 7, 3 पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा. और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 7. और वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 3. हमने सपोज किया था नंबर ऑफ गर्ल्स 7, देन एक्स इज इक्वल टू 7 इज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड वाई इज इक्वल टू 3. द नंबर ऑफ बॉयज इज 3. Therefore the number of girls and boys in the class are 7 and 3 respectively. गर्ल्स कितनी है आपकी? 7 और बॉयज़ कितने हैं आपके? 3. Our second question is
5 pencils and 7 pens together cost ₹50। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं और 5 पेंसिल और 7 पेन्स लिए तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ी उन दोनों की मिलाकर ₹50। वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल ली और 5 पेन्स लिए तब दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी हो गई 46। द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। हमको वन पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। Now let the cost of one pencil be ₹X and the cost of one pen be Y। वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी हमने ली X और 1 पेन की कॉस्ट कितनी ली हमने Y सपोज करिए। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं 5 और पेन्स कितने हैं 7। तो इक्वेशन बिकम 5X + 7Y = 50। एंड सेकंड इक्वेशन में पेंसिल्स हैं आपके 7 और पेन है आपके 5। सो इक्वेशन विल बी 7X + 5Y = 46। अब हमारे फर्स्ट इक्वेशन से हम फाइंड कर रहे हैं तो 5X + 7Y = 50। सो X प्लस का 7Y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और X का कोफिशिएंट 5 हम कहाँ ले आएंगे अपॉन में। तो X = 50 - 7Y अपॉन 5। अब हम फिर यहाँ पर Y की वैल्यू रखते जा रहे हैं तो हमें X की वैल्यू मिल जाएंगी। सबसे पहले मैंने Y की वैल्यू पुट करी 5, तो 7 5 are 35, so 50 - 35 is 15 and 15 upon 5 is 3. Now we are putting y is equal to 0, then 50 - 0 upon 5 is equal to 50 upon 5, that means 10. Value of x is 10. Now we are putting value of y is 10. So 7 into 10 is 70 and 50 - 70 is -20, -20 upon 5। 5 सम 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा -4। Now your point are 3 and 5, 10 and 0, -4 and 10. Our second equation is 7x + 5y = 46। अगेन प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और 7 को हम कहाँ ले आएंगे अपॉन में। तो हमारी x की वैल्यू हो गई 46 - 5y अपॉन 7। हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू हमने क्या रखी -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 = 10, 46 + 10 is 56, 56 upon 7 is 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब मैं y की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ 5, तो 5 5 = 25 एंड 46 - 25 is 21 and 21 upon 7 is 3। Now we are putting y's value is 12, 55 into 12 is 60 and 46 - 60 is -14, -14 upon 7 is -2। तो points are 8 and -2, 3 and 5, -2 and 12। Now we are plotting this point on graph। फर्स्ट हमने क्या रखा 7x + 5y = 46 पे पॉइंट हम देख रहे हैं। जब हमने 8 रखा तो 8 पे मुझे क्या मिला -2, 3 रखने पे मुझे क्या मिला 5, और x की वैल्यू हमने रखी -4, तो -4 पे हमें कितना मिला है 10। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। फिर सेकेंड इक्वेशन जो हमारी कौन सी थी 5x, फर्स्ट इक्वेशन जो थी 5x + 7y = 50। तो यहाँ -2 पे मुझे क्या पॉइंट मिला है 12, देन 3 पे मुझे पॉइंट मिला 5, और 10 पे मुझे मिला है 0। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है पॉइंट क्या हो रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर कर रहे हैं जहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5। तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5। और x की वैल्यू आपकी किसकी वैल्यू थी पेंसिल की, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 3, और पेन वो को हमने सपोज किया था ₹y, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 5। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। Now we are moving for our next question on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2। हमको रेशियोज को कंपेयर करना है। रेशियो किसके हैं a1 और a2 किसका रेशियो है x के कोफिशिएंट का, b1 और b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो है, और c1 और c2 कांस्टेंट टर्म का रेशियो है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, इन तीनों इक्वेशन के बेसिस पे हमको सॉल्व करके बताना है। Our first equation is 5x - 4y + 8 = 0 and second equation is 7x + 6y - 9 = 0।
We are comparing this equation with the null form of linear equation in two variables is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Here a1 is what? 5, b1 is minus 4, c1 is 8, a2 is 7, b2 is 6 and c2 is minus 9. Then a1 upon a2 is 5 upon 7, b1 upon b2 is minus 4 upon 6. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, दोनों टू के टेबल में आते हैं, तो 2 टू ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, देन माइनस 2 अपॉन 3. Here a1 upon a2 is 5 by 7 and b1 upon b2 is minus 2 by 3. Both are not equal. That means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, which shows that the system has unique solution. Unique solution, that means ग्राफ पे हमको क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करेगी? किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी. लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन have a unique solution and the pair of line intersected at exactly one point. अगर unique solution है तो केवल one point पर ही intersect करेगी. Our second equation is 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. Now a1 is 9, b1 is 3, c1 is 12, a2 is 18, b2 is 6 and c2 is 24. Now we are finding the ratios. a1 upon a2 is what? 9 upon 18. 9 upon 18 means 9 1 is 9, 9 2 is 18 means 1 by 2. b1 upon b2 means 3 by 6, 3 by 6 means 1 by 2 and c1 upon c2 means 12 by 24 means 1 by 2. a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 all are equal. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. That indicate system has infinite solution and graphical representative will be coincident lines. The line representing the given pair of equations are coincident and there are infinite possible solution for the given pair of equations. Now our next equation is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus 9y 2x minus y plus 9 is equal to 0. Here a1 is 6, b1 is minus 3 and c1 is 10, a2 is 2, b2 is minus 1 and c2 is 9. So a1 upon it is what? 6 upon 2, that means 3 upon 1. b1 upon b2 minus 3 upon minus 1, minus and minus cancel, that means 3 upon 1 and c1 upon c2 is 10 upon 9. So a1 upon a2 and b1 upon b2 are equal but c1 upon c2 are not equal. That indicates system has no solution and graphical representation will be parallel lines. Next our question is half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of the garden. Given that half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. गिवन है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है और उनका जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है उसका भी हम हाफ करें तो वो कितना हो जाता है 36. हमको डायमेंशन ऑफ द गार्डन फाइंड करनी है. First, we will suppose the width of garden is x and the length of y, length be y. The first question according y minus x is equal to 4 means लेंथ और ब्रीथ का जो डिफरेंस है वो कितना है 4. अगर मैं माइनस का इसे ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का, तो लेंथ हो जाएगी ब्रीथ से 4 ज़्यादा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. देन आवर सेकेंड इक्वेशन इज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36. But given that half the perimeter of rectangular garden and we know that the formula of perimeter of rectangular garden is 2 into length plus breadth is equal to 2 into half into 2 into लेंथ प्लस ब्रीथ. हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा लेंथ प्लस ब्रीथ विच इज इक्वल टू 36. हियर टू इक्वेशन आर हियर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, माइनस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 4. अब हम x की वैल्यू
पुट करेंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वाई की। अगर एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी, 0 की, तो वाई इज इक्वल टू 0 + 4 मीन्स 4, तो वाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 4। अगर मैं एक्स की वैल्यू 8 रख रहा हूँ तो 8 + 4 इज़ 12, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 12। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 12 रखी है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो पॉइंट्स आर 0, 4, 8, 12 एंड 12, 16। एंड आवर सेकेंड इक्वेशन इज y + x इज इक्वल टू 36। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। अगर मैंने x की वैल्यू 36 रखी तो प्लस का 36 आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 36 - 36 इज 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर मैं x की वैल्यू 16 रख रहा हूँ तो प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 36 - 16, तो 36 में 16 जाएगा तो 20 बच जाएगा। तो पॉइंट्स आर 0, 36, 36, 0 एंड 16, 20। नाउ वी आर प्लॉटिंग दिस पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर। सी 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 4, देन 8 पे हमें क्या मिला है, 12, और 16 पे हमें कितना मिल गया, 20। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, और फिर सेकेंड पॉइंट हमने लिया है, 0 पे मुझे कितना मिला, 36, फिर 36 पे कितना मिल रहा, 0। इनको भी ज्वाइन करा तो ये कहाँ पर आकर टच हो रही है, यहाँ देख रहे हैं हम 16, और यहाँ पर कितना है, 20। तो x की वैल्यू कितनी है, 16, और y की वैल्यू कितनी है, 20। मतलब x क्या था हमारा और y क्या था, 16, आपकी क्या आ गई, ब्रेथ, और लेंथ कितनी आ गई, 20। Next question is, draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by this line and x-axis and shade the triangular region. हमको दोनों इक्वेशंस को पॉइंट्स फाइंड करना है, उसके सहायता से हम लाइंस, स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ पे, उससे हम क्या बनाना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है, किसके साथ में, एक्स एक्सिस साथ में। अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन, मीन्स x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 का मुझे क्या निकालना है, ग्राफ। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। फर्स्ट इक्वेशन से एक लाइन मिलेगी, सेकंड इक्वेशन से एक लाइन मिलेगी, और एक्स एक्सिस, इन तीनों की सहायता से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उन ट्रायंगल के हमको वर्टाइसेस फाइंड करना है, और उसके साथ में उस ट्रायंगुलर रीजन को हमको शेड भी करना है। और फर्स्ट इक्वेशन इज x - y + 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब मैं y की वैल्यू रखते चलूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैंने y की वैल्यू सबसे पहले रखी 1, तो 1 - 1 इज़ 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। जब मैं y की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, और y की वैल्यू मैंने 3 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। तो 0 पे 1, 1 पे 2 और 2 पे 3। हमारी सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का, और 3 जो कोफिशिएंट x है उसको हम 1 मिल जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 12 - 2y/3। अब हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो 12 - 0/3 इज़ 4। देन y की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 12 - 6 इज 6, 6/3 इज 2। और जब हम x की वैल्यू, y की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो 2 6 ज़ा 12, तो 12 - 12 इज 0, 0/3 इज 0। तो 4 पे 0, 2 पे 3 और 0 पे 6, ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। इन पॉइंट्स को जब हम प्लॉट कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने देखा 0 पे मुझे क्या मिला, 0.6, 2 पे मुझे क्या मिला, 3, और 4 पे मुझे क्या मिला, 0। इसको हमने प्लॉट कर लिया है। वैसे मुझे यहाँ पर 0 पे मिला है -1, फिर 2 पे मिला है मुझे 3, और इन सबको हमने बनाया ग्राफ, लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही। कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई, एक्स एक्सिस पे पॉइंट और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, वर्टाइसेस कौन कौन सा बन रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो पहले वाले का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1, 0,
दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना जाएगा 2,3 और तीसरे का कितना जाएगा 4,0। ये हमने उन ट्रायंगल के वर्टाइसेस फाइंड कर लिए हैं और जहाँ जहाँ ट्रायंगल बन रहा है उसको हमने क्या कर दिया है, शेडिंग कर दिया है। अभी हमने 3.2 सॉल्व करी। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपको अपने आपके प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चंस की। इसके बाद वाले सेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।